Now, the next speaker for today is Sejal Desai. She is a MS plus MSc in clinical psychiatrist, a mental health counselor, and a parenting coach on overindulgence. She has done an in-depth and extensive research for 3 years in US on her area and subjects, and she has a vast and a rich experience of 17 years in the matter of mental health services UK. However, currently she is very much in our own Amchi Mumbai and she is practicing with a psychiatrist at Daisar. So I invite Sejal Desai to share her views and thoughts on how much is too much. Over to you, Sejal Bin. थैंक यू शिफाली। पहले मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ और सबसे पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू भरत भाई देसाई जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आज के सोप बॉक्स टॉक में टॉक करने के लिए। लास्ट वीक उनका जब मुझे फ़ोन आया था कि सेजल आप इस थर्सडे को कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में उसके बारे में कुछ बात बताइए, तो मुझे सबसे पहले जो दिमाग में आया वो था ओवर इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले मैं आप सबको ओवर इंटेलिजेंस क्या है और ये इसकी शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये एक साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च है जो 1980s में 3 लोगों ने बैक इन अमेरिका, जिनका नाम है जीन इंजली क्लार्क, डेविड ब्रैडशॉ और कॉनी डॉसन, ये तीनों ने चालू किया था। और उनका एक ही एम था कि ओवर इंटेलिजेंस की वजह से क्या क्या विपरीत असरें बच्चों के मानस में पड़ती है और वो आगे चल के उनकी एडल्ट लाइफ में उनको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, क्योंकि ओवर इंटेलिजेंस का मतलब ही है ज्यादा करना, अत्याधिक करना। और हमें और वो जो जब अत्याधिक होता है वो अच्छे हाथ से ही होता है, तो वो समझ लाने के लिए और उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस जो एडल्ट लाइफ में आता था उनके लिए उन्होंने पूरी रिसर्च बेस की। और आई एम गोइंग टू नाउ प्ले एक शॉर्ट वीडियो है जो उनका ही बनाया हुआ है एंड वो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देगा कि ये कौन सी रिसर्च है और क्यों ओवर इंटेलिजेंस के बारे में हमें आज की तारीख में जानना जरूरी है। So I would like to request if you can please start the video. We may be noticing that children right now may be too involved in themselves. It's about me, me, me. It may be too much right now. I want it right now. It may be nagging. I want it, everybody else has it. And we're watching these attitudes and we're thinking, this is not a lot of fun to live with. And if this child maintains this attitude into adulthood, it may not fly very well in the adult world. In fact, it may cause problems in the workplace. And so most people are interested in learning about it to figure out how to recognize it and how to cope with it. What is overindulgence? People who were overindulged as children tell us that it is having too much of anything that looks good, but having so much of it that it delays development. It keeps the child from learning what they should have been learning at that age. And it can cause problems in adult life. They tell us that it has happened in 3 ways. One is too much. Too many toys, too many clothes, too many lessons, too many camps, too much entertainment. They didn't complain about that as much, however, as they complained about the second way, which is having things done for them that they should have been doing for themselves. So that as they grew up, they didn't learn skills that everyone else knows. And this makes them helpless. You do it for me, it's too hard, my stomach hurts. We hear them tell us about this in those ways. And then the other thing that they complained about is that there were not rules in the family or they weren't enforced, and that can get them in trouble in adult life. In fact, in the workplace, some people said I've had trouble keeping a job because I never think the rules apply to me.
The other thing about soft structure is not having done chores. That surprised me because I didn't like chores and I did them. My kids didn't like them and I did them. But it turns out that they are a very valuable way that let children learn to be competent. And so going into the adult world without that background for competence is a risk. This business of living is so much overindulgence. It's everywhere in the culture. In fact, we think of it as the new normal. Everybody's doing it. How do I know if this is overindulgence? First of all, identify if something is overindulgence. So you'll hear about the test of 4 again and again. What can I do about overindulgence? So we will be using the developmental highway, we'll be using the suggestion circle, we'll be looking at the story of the gingerbread man, and hoping that you will leave this class with more options. Because the more options a parent has, the more successful you have a chance of being. थैंक यू वेरी मच. सो अभी आपने देखा कि ये जो एक रिसर्च हुआ था और उन्होंने वो कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ ज्यादा टॉयज देना या ज्यादा कपड़े देना वही हम उसको ओवर इंडल्जेंस मानेंगे, आध्यात्मिक मानेंगे, या फिर हम ज्यादा हमने पैसे अपने बच्चों के ऊपर आप ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, क्या वही ओवर इंडल्जेंस है? तो उन्होंने जो रिसर्च की, जो डेटाबेस बनाया जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 पीपल पार्टिसिपेटेड थ्रू आउट दिस 30 years ऑफ देयर 10 रिसर्च स्टडीज, उन्होंने ये पाया कि हम 3 चीज से, देयर आर 3 ways we can do over indulgence. Can I have a next slide please? So सबसे पहला वाला है वो है टू मच. जब हम आप आज की तारीख में, स्पेशली मैं ये जनरेशन की बात करना चाहूंगी, जब पेरेंट्स के पास, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, माइग्रेट हो चुके हैं सिटीज के, अलग अलग सिटी में रहते हैं, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं है, और मोस्टली आज 1 या 2 बच्चा मैक्सिमम है. तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनको बेस्ट दें, और वो बेस्ट के फीलिंग में, इमोशन में वो बहुत कुछ ज्यादा दे देते हैं. मतलब कि आप किसी के भी घर पे जाइए, मैं आपको एक पूरा कमरा बच्चों का टॉय से भरा हुआ आप देख पाएंगे, या उनके क्लोथ्स है, प्रिविलेजेस है कि अगर आज आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, 2 हफ्ते के बाद वही जगह पे अगर बच्चे के स्कूल से आया कि आपको वही जगह पे पिकनिक पे जाना है या ट्रैवल करना है, और आपका बच्चा रो के आपके पास आता है कि मम्मा डैडी यहाँ पे तो मुझे जाना ही जाना है बिकॉज आई हैव टू गो विथ माई फ्रेंड्स, और मम्मी डैडी फिर भी वो जगह पे उनके बच्चों को रजिस्टर करवाएंगे और उनको भेजेंगे. These are the privileges we are talking about. Entertainment, sports, camps, मतलब कि आज आप हर एक बच्चे को, मैं यहाँ अज्यूम नहीं करना चाहती, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल whom I come in contact with, I will speak for them, कि सबका मिनिमम से मिनिमम 3 या 4 क्लासेस तो है, और उनकी एज ग्रुप क्या है, फ्रॉम 5 years onwards, जिसका टाइम है प्ले करना, रूटीन में अपने टॉयज के साथ खेलना, बिना कोई स्ट्रक्चर किए फ्री प्ले करना. वही बच्चा इतने सारे स्ट्रक्चर में, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स वांट देम टू हैव टू मच. नंबर 2, ओवर नर्चर. ओवर नर्चरिंग क्या है? स्पेशली हम लोग भारतीय हैं, और हमारा एक पहले से एक मैसेज दिया गया, एक स्क्रिप्ट मैं जिससे कह सकती हूँ, वो स्क्रिप्ट आपने हर जगह सुनी होगी, महसूस की होगी, कि ये आप मीडिया में देख लीजिए, फिल्म्स में देख लीजिए, कह रहे आपका बच्चा है और आपको उसके लिए सब कुछ करना है. आप भूखे सो जाइए लेकिन उसको भूखा मत रखिए. आप नीचे सो जाइए टाइल्स पे, लेकिन बच्चे को तो गद्दे पे ही सुलाइए, क्योंकि वो तो भगवान का रूप है. I feel that emotion from the parents, लेकिन वो कब तक सही है और कितना सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसको ओवर कर रहे हो? ये एक क्वेश्चन अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है. Giving too much of attention
मतलब आपके बच्चा आपके पीछे 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 भाग रहा है, आपको कुछ भी काम नहीं करने दे रहा है, और आप ठीक है मैं आपके लिए, चलिए आपने मुझे बताया चलो 5 मिनट खेल लूं, मैं 5 मिनट खेल लूं। अब इसमें होता क्या है कि बच्चा एक लैंग्वेज सीखता है आपके जेस्चर से और आपके पोस्चर से, कि मैं जब भी बोलूंगा माई पेरेंट्स आर रेडी फॉर मी, वो ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रेडी होता। वो उसका जो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स है, जो हर एज का माइलस्टोन होता है, जो उसको अचीव करना होता है, वहां पे उसको गैप आ जाता है। नंबर 3, सॉफ्ट स्ट्रक्चर, जहाँ पे घर के काम, जैसे हम इंग्लिश में चोर्स कहते हैं, वो बच्चों से नहीं करवाए जाते। क्यों? क्योंकि मम्मी को लगता है कि कौन इतना फर्स करेगा, मैं बोलूंगी तो वो लोग ना बोल देंगे, या फिर अगर वो लोग काम करने को चालू करेंगे तो पूरा घर मैस कर देंगे, तो उससे अच्छा है मैं ही कर लूं। लेकिन हम वो नहीं समझ पाते कि वो जो मैस होगा उसमें वो बच्चा बहुत सारी चीजें सीख रहा है। तो अगर वो 5 बार अगर मैस करेगा, लेकिन छठी बार ही विल और शी विल बी रियली गुड विद इट। और ये मैं अपना एक्सपीरियंशियली मैं बता रही हूँ, मेरा 4.5 साल का लड़का है, और जब भी मैं उसको खाना देती हूँ और वो गिराता है, मेरा वो क्रिटिसिज्म नहीं रहता कि आपने क्यों गिराया, लेकिन मैं उनको जरूर बोलती हूँ कि आपने जो गिराया है वो आप खुद प्लेट में डालिए और खुद जाके बिन बैग में डाल के आइए। इनिशियली वो बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन धीरे 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 जो मेरा कंफर्म ग्राउंड रूल्स था घर में कि आपको ये करना ही है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली रूल, और वो अब जाके सीखा है और सीख रहा है राधा। तो दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग गुड kind of a good rules for them. So ये जो 3 मैंने आपको 3 ways बताए, this is about how we knowingly, unknowingly, consciously, subconsciously we overindulge our children and ourselves as well. Do not forget that. Can we have a the next slide please? Now ओवर इंडल्जेंस कम फ्रॉम अ गुड हार्ट। अगर आप कहेंगे कि सेजल अगर हम बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, मैं आपके साथ कंप्लीटली सहमत हूँ, और ये जो भी होता है वो दिल से ही होता है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे का करियर खत्म कर दूं, मैं उसको कुछ ना करवाऊं, ऐसा कोई माँ बाप नहीं है ये पूरे प्लानेट अर्थ में। लेकिन जो गुड फीलिंग है वो कितने हद तक सही है वो जानना हमें बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जब भी आप जब आप कोई बच्चा देखोगे जो कम्प्लीटली ओवर इंडल्ज होता है, आप उनके माँ बाप को भी देखें कि उनके भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस वैसे ही रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो गुड है उसका मतलब वो नहीं कि वो राइट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन गुड एंड राइट, द नीड्स वर्सेस वांट्स, किसकी नीड है और किसकी वांट है। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now, why should parent care if they overindulgence or not? क्यों हमें फर्क पड़ना चाहिए कि ये ओवर इंडल्जेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ओवर इंडल्जेंस आगे जाके बच्चों के लाइफ में, जब वो एडल्ट लाइफ में आते हैं, इट गिव्स अ बिग पेन। आज मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, और मेरे पास बहुत सारे लोग डिप्रेशन से लेके, लो सेल्फ एस्टीम से लेके, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेके, लाइफ को कोप अप नहीं कर पाने की वजह से अपने आप को बहुत ही लो फील करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को, जिस तरह से उनकी परवरिश की गई हुई होती है, मैं वहां पे झांकना बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। और वहां पे मुझे वो दिखता है कि वो बच्चे को कभी फेलियर का एहसास कभी नहीं करवाया गया। वो बच्चे को उनका जो माइलस्टोन्स जो थे, जो माइलस्टोन डेवलपमेंट जो उनको अचीव करने होते थे, वो नहीं करवाए गए। उनको सब कुछ दिया गया बिना उनके मांगे हुए, तो वो बच्चों का तो फॉल्ट ही नहीं है। और मैं यहाँ पे कोई प्रीचिंग नहीं करना चाहती, मैं भी एक खुद पेरेंट हूँ, और मैं भी इस चीज में मैं भी अपने आप को पाती हूँ कहीं ना कहीं ओवर इंडल्जेंट, और मैं अपने आप के ऊपर काम भी कर रही हूँ जिससे मेरे बच्चे को भी मैं वो सिखा सकूँ। नंबर 2, दे नीड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। आप देख पाओगे कि या तो बच्चे में, इवन इन एडल्ट लाइफ यू विल मीट सो मेनी पीपल कि अरे देखो आज तो अच्छा मोबाइल आया है। एज ए एडल्ट लाइफ यू विल क्विकली बाय दैट। ऑनलाइन शॉपिंग, इट्स अ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो हमारे पेरेंट्स करते थे, वो अब वो नहीं आता इसमें।
बच्चों के बाद आप अगर बच्चे को 10-15 दिन सब कुछ दे दीजिए तो उसमें एक असर से आती है कि जो भी मैं मांगूंगा मुझे अभी चाहिए, उसकी वैल्यू है कि नहीं है उससे उससे फर्क नहीं पड़ता। दे डेवलप दिस पुअर सेल्फ कंट्रोल, उनको कोई कंट्रोल ही नहीं है, और ये कंट्रोल हम हर एक चीज में देख सकते हैं, वेदर इट्स अ फूड, वेदर इट्स अ शॉपिंग, वेदर इवन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल, how to do, what to do. So they find it difficult to process that. Have a overblown sense of entitlement, मतलब कि हाँ मैं कुछ हूँ। एक 7 साल का बच्चे का जो एटीट्यूड है कि नहीं मुझे पता है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मतलब कि मैंने कुछ ऐसा किया है इसके लिए मुझे सब कुछ मिले जा रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया है आपने, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो जो फीलिंग है जो माँ बाप देते हैं ओवर इंडल्जेंस करने के बाद, वो अपने कहीं ना कहीं वो अपने दिल में रख के चलते हैं, जो उनको एडल्ट लाइफ में जब वो पहला इंटरव्यू देते हैं और जब बॉस निकाल देता है कि नहीं आप इसके लिए कैलिबर नहीं हो, वो जो फीलिंग, जो ड्रॉप फीलिंग होती है, वो जो सिंकिंग फीलिंग होती है, इट्स रियली सैडनिंग फॉर देम एंड दे गेट इनटू द डिप्रेशन. They are also very ungrateful. They also feel very ungrateful about things. कि मुझे अगर नहीं मिला तो, अगर मुझे कुछ मिल रहा है, माँ बाप कुछ दे रहे हैं मुझे, तो उसका थैंकफुलनेस नहीं होता. हाँ मिला तो मिला. They have difficulty giving up being the center of attention. और ये चीज हम आप अपने कलीग्स के साथ अगर काम करते होंगे, अगर उनको ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट. And then there is a overspend, they overeat, they have a goals of wealth, fame and image. There is no thinking about मैं किस तरह से community में contribute करूँ, मैं किस तरह अपनी relationship को, मेरी family, मेरे जो partner है या मेरी spouse होगी या मेरे बच्चे हैं, उनको मैं कैसे meaningful life दूँ, क्योंकि वो उनकी वो सोच तब तक नहीं develop हो पाती. Can we have slide please? You can help your child not be this way. And सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो 3 टाइप्स ऑफ ओवर इंडल्जेंस है, आप कहाँ पे उसको फिट पाते हो. तो सबसे पहले पहला कोई भी एक चीज ले लीजिए, टू मच ले लीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए. उसके बाद आप दूसरे दो को लेके आप उसके ऊपर you can be curious and you can always notice about what you are experiencing. Teach which rules are negotiable and which are not. मतलब कि अगर बच्चा आपको कह रहा है 5 चॉकलेट खाने के बाद कि मुझे छठा चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको वो बाउंड्री लाइन तोड़नी पड़ेगी कि नहीं, इसके बाद आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर यू. एंड आई एम वरीड, अगर आप ज्यादा खाओगे या आप ज्यादा टीवी देखोगे या ज्यादा आप जो भी चीज आपके लिए अनहेल्दी है, आई एम द पेरेंट एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू, एंड इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 3, एनफोर्स द रूल्स यूजिंग रीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेस. ये बहुत जरूरी है. आज की तारीख में हमें बहुत सारे पेरेंटिंग कोचेस या कहते हैं कि आपको बच्चों को कॉन्सिक्वेंस नहीं देना है, आपको उनको गुस्सा नहीं करना है, आपको उनको शाउट नहीं करना है, विच आई कंप्लीटली अग्री. लेकिन उसके सामने आपको उनको कॉन्सिक्वेंस देने हैं जिसकी उनके जरूरत है. आई एम गोना गिव यू अ क्विक एग्जांपल ऑफ माइन. व्हेन माय चाइल्ड गोज विद नॉटी बिहेवियर्स, जो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मैं उसको मेडिटेशन करवाती हूँ. 100 उनकी आंख बंद करके 100 काउंट करवाती हूँ, और 100 काउंट तक उनको अपनी आंख बंद करनी है और अपने थॉट के ऊपर सोचना है कि मैंने ऐसा क्यों किया. ही इज जस्ट 4.5, बट आई एम टेलिंग यू, आई कैन सी whenever he is not able to focus on his mind, ये चीज उसको वो अपने आप बैठ जाता है अभी, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कुछ नॉटी बिहेवियर की है. नंबर 4, टीच चिल्ड्रन that every member of the family benefits by distributing the chores. घर के काम में हाथ बटाना, लड़का हो या लड़की हो, doesn't matter, बहुत 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 जरूरी है अपने माइलस्टोन्स के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, जो आगे जाके उनको बहुत ही फायदे कारक होगा. Can I have the last one please? With the conclusion, मैं एक ही चीज बताऊंगी. It's very important, एक मेंटल हेल्थ, अच्छी वाली मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए ओवर इंडल्जेंस को चेक करना बहुत जरूरी है. और उसके साथ साथ वो भी जरूरी है कि आप अपनी जो स्टोरी, आपकी खुद की जो स्टोरी है, वो आप कैसे अपने बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करते हो. मतलब कि व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई what are my wants and what are my needs,
अगर मैं कुछ बाहर शॉपिंग करने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा टॉय मिला जो 2000 रुपए का है, आई कैन डेफिनेटली अफोर्ड, लेकिन उसका मतलब वो है कि मुझे वो लेके मेरे बच्चे को देना ही है। मुझे अच्छा लगा, मेरे बच्चे ने तो मुझे नहीं मांगा, उन्होंने तो मुझे, ही डिडंट आस्क फॉर मी टू बाय दैट, लेकिन मैं लेके घर पे आई, ये देखो मैंने आपके लिए लेके आई। Understand the difference, that fine line, that it's about their needs and their wants and your needs and your wants. तो आप अपने बच्चे में अपना चाइल्डहुड मत ढूंढिए, ये उनका खुद का चाइल्डहुड है। और जहां जहां आपको लगे कि ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए आप अपने अपने आप को आप यू कैन बी माइंडफुल अबाउट इट। आई एम गोना क्विकली शेयर अ नाइस टूल व्हिच आई यूजुअली पर्सनली यूज, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड टेस्ट ऑफ 4। वो बेसिकली 4 ऑप्शंस है। उसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन, मतलब आप जब अब कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, या आप टू मच में हो, या ओवर नर्चर कर रहे हो, या फिर सॉफ्ट स्ट्रक्चर में हो, एक क्वेश्चन आप जरूर अपने दिमाग में डालिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे बच्चों के माइलस्टोन्स में हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। If I am buying that 2000 rupees worth of toy, is it really add any value to his milestone or not? Number 2, ये जो जितना पैसा मैं डाल रही हूँ इस चीज के लिए, या जितना खाना मैं उसको थाली में दे रही हूँ, is it really that child is needed or it is about me? Number 3, ये जो भी 3 स्ट्रक्चर में मैं जो भी कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे फैमिली को, मेरी सोसाइटी को, मेरी कम्युनिटी को अफेक्ट होता है कि नहीं होता है। इन दैट आई एम गोना गिव यू वन क्विक एग्जांपल अबाउट, इफ आई एम बाइंग दैट 2000 वर्थ ऑफ टॉय, आई एम एक्चुअली बाइंग अ 2000 वर्थ रुपीस ऑफ प्लास्टिक, which is not good for a community, for a society per se. I am teaching on one hand that plastic is no good to my child, and is actually playing with the plastic toy. So there is kind of a curious question you can always ask. Unfortunately, I have not made a slide about the test of 4, but later if anybody is interested, I would love to share that with anybody who wants to have that. And the fourth thing is, am I doing overindulgence to my child? Yes or no? And most of the time you will get the answer. In the end, I want to leave you with a very a nice quote from Kajal Oza Vaidya. She's one of very renowned orator about child and parenting. और उन्होंने एक गुजराती में कोट था, लेकिन मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हमेशा से सोचते हैं कि मैं कांटों पे चलूंगा, लेकिन अपने बच्चे को तो मैं मलमल की चटाई पे ही चलाऊंगा क्योंकि वो डिजर्व करता है। लेकिन वो कहती है कि आप उनको कांटों पे चलाना सिखाइए, सो दैट वो दूसरों के लिए मलमल का रास्ता बना दे। मुझे लगता है वो बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच अवर चिल्ड्रन विद दिस इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, जहाँ पे फेलियर, कोई भी चीज का फीलिंग अबाउट कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं मिलने वाली है, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको हार्डशिप करनी पड़ेगी, with the support system of a family, and that's where the child can bloom and grow. And the people who have achieved successes in their life, they are, most of them are not overindulgent people. They have always gone through and achieved their milestones and development in their childhood experiences. With that, I hope you like this talk, and if you have any more information needed, you can always contact me and Bharat bhai. Once again, thank you everybody. आप सबका धन्यवाद। भरत भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. नमस्ते एवरीवन। आप सबका आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे दोनों ही स्पीकर्स ने हमें बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दिए हैं ऑन संस्कार एंड व्हाट इज स्पेशली फॉर पेरेंटिंग, व्हाट इज ओवर इंडल्जेंस, एंड आई थिंक आई कैन रिलेट टू इट वेरी वेल बिकॉज like the way my parents have brought me up, they taught me the importance of failure, and then how do you overcome it, and why do you face it, and how do you face it. So it was a very wonderful insight. And also Hardik Maharaj ne બહુ thank you, કેમકે તમે જે પણ આજે શીખવાડ્યું છે એ હું જરૂર યાદ રાખીશ
અને હું દઈશ મારા 5 મિનિટ. હું રોજ નથી દેતી. મમ્મી કે તે છતાં પણ, મમ્મી પપ્પા કે તે છતાં પણ હું રોજ તો નથી દેતી. પણ આઈ થિંક આજથી મને એની ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર પડી ગઈ છે કે કેમ હોય ને શું હોય, અને હું 5 મિનિટ તો જરૂર કાઢીશ એની માટે. તો એની માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. And once again, thank you everyone for joining. I would request, if you guys have not subscribed to the Soapbox Talks YouTube channel, please do so. We are planning to go live on there the next week. And keep joining with us on every Thursday from 7 to 8 without fail. And thank you all for your love and support.